So let us start now. Question number 14. I think my voice is audible to you all, everyone. Okay, now see. Question number 14. और जो तनिष तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना वो वाला पार्ट में वो मैं वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तुम उसको देख लेना अच्छे से। मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो सारा का बना लूँ। नहीं, तुमने लिखा था ना कि पूरा 7 नंबर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सोचा कि हाँ, अगर तुम स्पेसिफिक कोई डाउट मेंशन किया रहता तो मैं सॉल्व करके अभी तक भेज दिया रहता। और मैंने देखा था वहां पे। चलो जो भी है, ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा। नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम नंबर 14, ओके। सो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे सबको, बिकॉज 14 का 1 एंड 2 हो जाएगा सबसे। देखो एक बार। नाउ कैन यू टेल मी इन 14 का 1 व्हिच फार्मूला डू वी हैव टू अप्लाई? रीड द क्वेश्चन वंस। sin x का वैल्यू दिया हुआ है 1/6 and we have to find the value of sin 3x. So can you tell me which formula we have to apply here in this sum? Yes, exactly. हम लोग को यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर देने से इस 14 का 1 और 14 का 2 भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ठीक है, इसीलिए मैं ये छोड़ देता हूँ। एक बार 14 का 3 देखो। इन 14 का क्वेश्चन नंबर 3, we know the value of sin theta which is a, the value of sin 2 theta which is b, and we have to find the expression of, listen here, we have to find the expression of cos theta in terms of a and b। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो देखो बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है जरूर कि sin थीटा का अगर वैल्यू पता है तो cos थीटा का वैल्यू तुम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? as you all know that sin squared theta plus cos squared theta is 1, you can put the value of sin theta and determine the value of cos theta, but in this case we are finding that the value of cos theta which you are getting is only in terms of a, but here in the sum you are asked to find out in terms of a and b both, so that's why this will be wrong। Are you understanding? बहुत लोगों के दिमाग में क्योंकि जरूर ये बात आ रहा होगा कि जब sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्यों नहीं ऐसे निकाल सकते, जैसे क्योंकि हम लोगों ने बाकी सम्स में जब sin थीटा का वैल्यू दिया रहता था तो cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अपन ने यही रिलेशनशिप यूज किया था। So why not in this sum? Because the reason is, why not in this sum? Because the reason is that you are getting answer in terms of only a, but you are asked to determine the value of cos theta both in terms of a and in terms of b. So what I am doing, as you know that the value of sin 2 theta is given to us, which is b. What is the formula of sin 2a? Sin 2a का formula क्या होता है? It is 2 sin a into cos a. All right, everyone. We are applying the formula of sin 2a, which is 2 sin a into cos a. Okay. स्क्रीन तो क्लियर है यहाँ पे। तुम्हारे एंड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जस्ट गो बैक एंड एंटर द मीटिंग, हो जाएगा। डोंट लीव द मीटिंग, गो बैक एंड वंस अगेन री एंटर, हो जाएगा। कम बैक टू द मीटिंग। नाउ सी, the formula of sin 2a is 2 sin a into cos a, clear? 2 sin a cos a फॉर्मूला है। यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। So what is the value of cos theta? So cos theta is b divided by 2a। देखो यही तो पूछा गया था ना, determine the value of cos theta
in terms of A and B. Please mute your device. So cos theta का value both in terms of B and A ये रहा मिलेगा आपको. Next. The second question is, hence find the relation between A and B not involving theta. Now we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sin square theta plus cos square theta क्या होता है? 1 होता है. यहाँ पे sin theta का वैल्यू पुट कर देना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. cos theta का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना. I don't know what just I use this. तुम्हारे मैच का है क्या? So we have a square plus b square by 4a square equals to 1. This is the second part. So I repeat once again, listen here. Sin theta का वैल्यू a दिया हुआ है और sin 2 theta का वैल्यू b दिया हुआ है. इन दोनों को यूज करके हम लोग को cos theta का वैल्यू निकालना है in terms of a and b both. So I said you that if you do this, it is wrong. Why it is wrong? Because we are getting the value of cos theta only in terms of a. But actually we are asked to find out the value of cos theta in terms of a and b both. So what I did, I used the second given condition, that is sin 2a is 2 sin a into cos a, और sin theta का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. So we are getting cos theta equals to b by 2a. Next. उसके बाद second part था determine the relationship between a and b not involving theta. मतलब a और b का relationship निकालो जिसमें theta ना हो. So sin square theta plus cos square theta is 1. Put the value of sin theta and the value of cos theta and just simplify. You can just take LCM and simplify it. Okay. Everyone copy down. And if you have to ask anything, you can ask. Okay, so you can leave your answer. Now after this, everyone, try question number 5, 14 का 5. या 14 का नंबर 5. देखो 15 करने के बाद बहुत लाइक उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन कांसेप्ट है यूज करना होगा नंबर 16 से. 16 से सारा सम्स बहुत अच्छा है. तो फटाफट करना एक बार 14 का 5 एंड देन विल डू 15. Do fast number 14 का 5. एक बार मुझे निकालना पड़ेगा. वैसे ही
I'll just explain for those students जिनको एक बार ये question समझ में नहीं है, so that you can do this one. Listen. So 14 का number 5. So listen here. See, 14 के 5 में क्या है? A is an obtuse angle. So it is given that A is an obtuse angle. So if A is an obtuse angle, it means that A lies in which quadrant? Second quadrant. Because obtuse means greater than 90 but less than 180. So greater than 90 or and less than 180 means second quadrant. उसके बाद हम लोग को साइन ऑफ ए दिया हुआ है. And what is sin of A? It is 5/30. उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो एक बार. B is an acute angle. If B is an acute angle, so what is the meaning of acute angle? Greater than 0 degree and less than 90 degree. Therefore, B lies in first quadrant. Okay. So we know that A lies in second quadrant and B lies in first quadrant. Okay. और उसके बाद हम लोग tangent. What is the meaning of this word tangent? Tangent means tan. Okay. Tan of B is 3/4. इसमें दो पार्ट है. एक में हम लोग को sin 2b का वैल्यू निकालना है और दूसरा में हम लोग को tan of A minus B का वैल्यू निकालना है. So I want your attention here. The formula is tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. इस सब में प्रॉब्लम ये है कि tan B का वैल्यू पता है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, लेकिन tan A का वैल्यू नहीं पता है. तो sin A को यूज करके एवरीवन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan A. हाउ? डिटरमाइन cos A फर्स्ट. दैट आई विल एक्सप्लेन बिकॉज़ तुम लोग ये करते आ रहे हैं. और उसके बाद tan A मिल जाएगा. सो एक बार sin A से cos A निकाल लो. ये ध्यान रखते हुए A लाइन का सेकंड क्वाड्रेंट में tan A. उसके बाद sin 2b का दो फॉर्मूला है. 2 sin b into cos b और एक फॉर्मूला है 2 tan b divided by 1 plus tan square b. Now can you tell me which will be better? Which will be better formula? Which is appropriate formula to choose to calculate sin? Yes, because why to waste your time in determining the value of sin b and cos b? It's better हम लोग डायरेक्ट tan b का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और sin 2b निकाल देंगे. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हमको tan a निकालना पड़ेगा. ठीक है? So everyone complete this sum first. Answer is 24/25. इसका आंसर पहला होगा. सो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको. मैंने समझा दिया. तुम लोग खाली कैलकुलेशन करके आंसर निकालना फर्स्ट. और जिसका ये हो जाए 15 का 1 करना. ओके 15 का नंबर 1 ट्राई करना. And those who need help in this sum, you can ask. ऐसा कुछ कोई बात नहीं है. मैंने समझा दिया बट फिर भी अगर लगता है कि तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पूरा सम एक्सप्लेन कर सकता हूँ. कोई दिक्कत नहीं है. बट एक बार कंप्लीट करो सम. बैठा मत रहना.
So as A lies in the second quadrant, so the value of cos A is negative. So tan A equals to sin A by cos A. Sin A by cos A, that is minus pi by 12. Now you can just put the value there, okay? A के लिए sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई करना, tan वाला. Put the value, you will get 24 by 25. And number B में यहाँ पे tan A का value which is minus 5 by 12. The value of tan B which is 3 by 4. Solve this, you get the answer. Okay. 48 gets cancelled. We have minus 56 by 33. है ना आंसर? देखो एक बार नंबर बी का आंसर minus 56 by 33 है. चेक कर लो एक बार. Now 15 का 1 देखना एक बार. I know 15 का 1 में प्रॉब्लम होगा. ओके, मैं 15 का 1 सॉल्व करके बताता हूँ. So I think everyone has copied this one. So I'm erasing this. और 15 का 1 जिसको समझ में नहीं आया वो लोग एक बार बोर्ड पे देना. जिसका जिसका हो रहा है यू कंटिन्यू, और जिससे नहीं हो रहा है 15 का 1 एक बार कंसेप्ट को बोर्ड पे देखना. मैं पूरा सब नहीं बताऊंगा, ओनली द कंसेप्ट. इस सम में हम लोग को cos अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है which is 3 divided by 5. cos बीटा का वैल्यू दिया हुआ है which is 4 by 5. Alpha and beta are acute angles. It means that alpha and beta lies in first quadrant. Okay, and we are asked to determine the value of in this sum we are asked to determine the value of cos of alpha minus beta by 2. तुम ये छोड़ दो एक बार, तुमको मैं जो बोल रहा हूँ उस पे कंसंट्रेट करो. cos alpha दिया हुआ है, cos beta दिया हुआ है. Alpha and beta are acute angles, means less than 90, more than 0. Means they lies in which quadrant? First quadrant. Both alpha and beta lies in first quadrant. Now, so tell me how to determine cos of alpha minus beta. Yes, how to determine? ये छोड़ो, ये दिया हुआ है निकालने के लिए, इसमें तुम दिमाग मत लगाओ. पहले ये बता मुझे कि cos of alpha minus beta कैसे मिलेगा, बताओ. Yes, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Okay. Now cos of alpha minus beta के लिए, I'm sorry, cos alpha into cos beta. So the formula is cos A into cos B. Yes. I'm coming to that point. You are wrong. अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि find the value of sin 90 degree divided by 2, इसके लिए क्या तुम एंगल के अंदर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर. This is angle. This is alpha minus beta by 2. This is angle part. How can you divide this by 2? Then you will get the value of this part. How you are going to divide this by 2? Then you will get the value of this. It is wrong.
इसका मतलब ये हुआ कि cos a का वैल्यू अगर 2 है, 2 तो नहीं हो सकता, 3/4 है, तो cos ऑफ a/2 का वैल्यू क्या होगा? इसको 2 से डिवाइड करके आ जाएगा। रॉन्ग है ये, दिस इज रॉन्ग कांसेप्ट। बिकॉज ये एंगल है, ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि cos a is 3/4, so what is cos a whole 3/2? दिस इज डिफरेंट, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें अगर मैं बोलूं तो cos a का वैल्यू 3/4 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3/8। समझ में आया? तो अगर मैं ये पूछूं तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये थोड़ी ना सेम चीज है ना। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए cos अल्फा इनटू cos बीटा, sin अल्फा इनटू sin बीटा। We know cos alpha, cos beta. Everyone find out what is sin alpha and what is sin beta. बढ़िया। और वैल्यूज को पुट करके ये वैल्यू निकालो तो पहले जल्दी। सब कोई कैलकुलेशन करो और सब कोई सम करो। Where determine using cos alpha, determine sin alpha, using cos beta, determine sin beta। हाँ, तो अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट करके इसका आंसर निकालो। इसका cos of alpha minus beta। हाँ, ठीक है, एक मिनट सबको बताएंगे। So I'm waiting for everyone. You all complete. सब कोई complete करो। sin अल्फा का वैल्यू निकालो और cos बीटा का sin बीटा का वैल्यू। So the answer is 24/25. So now I want your attention, everyone. Now just tell me one thing. If cos a का वैल्यू is 2/5, अगर cos a का वैल्यू 2/5 है और मैं पूछूं कि cos of a/2 का वैल्यू क्या है, now कोई आइडिया दे सकता है कैसे निकलेगा? Just consider it here. Tell me. Exactly, very good. Cos a, see the formula of cos 2a is 2 cos square a minus 1. Listen here. The formula of cos 2a is 2 cos square a minus 1. So what is the formula of cos a? It is 2 cos square a by 2 minus 1. So if I use this formula and if I substitute the value of cos a, you get the value of cos a by 2. और याद करो मैंने बताया था तुम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला इससे डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है 1 plus cos 2a is 2 cos square। चेक वंस इन योर कॉपी। देखो मैंने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने बोला था कि इसको लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नोट डाउन इन योर फॉर्मूला कॉपी एवरीवन। सी यू हैव इन योर फॉर्मूला कॉपी दिस, सो जस्ट लिसन इट एवरीवन। So we know that if 1 plus cos a is 2 cos square a by 2, is this true or false? Tell me. If 1 plus cos a is 2 cos square a by 2, can I say that 1 plus cos of alpha minus beta is 2 cos square alpha minus beta whole thing divided by 2? Check once. अगर 1 plus cos a 2 cos square a by 2 होगा तो 1 plus cos of alpha minus beta क्या होगा? 2 cos square alpha minus beta by 2। अब करना क्या है यहाँ पे? Cos of alpha minus beta का value which is 24/25 substitute here।
So if you take LCM, you get 49 by 25. टू डिनोमिनेटर में आएगा 49 by 50. ओके, अगर cos स्क्वायर का ये वैल्यू है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का, तो फिर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 by 50. But who can tell me that I am going to take positive value or negative value? Yes. Can you explain me the reason for this? How do you know that first quadrant? Alpha and beta first quadrant में, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा? वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. क्यों? मान लेते हैं हम लोग अल्फा का वैल्यू 80, बीटा का वैल्यू 40, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 40. अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा? 40 by 2, that is 20. So we find that alpha minus beta by 2 will lie in first quadrant. And in first quadrant, all the functions are positive. So that's why we are going to take positive value. Is this clear? Yes. इसलिए इसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है. मैं एक्चुअली ये चीज बताया नहीं कि इससे सेम टाइप का सम आगे एक और मैंने दिया है जिसमें वहां पे ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बता रहा हूं. देखो यहां से अगर हम मान लो घूमेंगे 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 0 टू प्लस 90, ध्यान से सुनो, 90 टू प्लस 180, प्लस 180 टू 270, प्लस 270 टू 360, और ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 0 टू माइनस 90, तो 0 टू माइनस 90 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखें तो. सो दैट्स व्हाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव ही होता है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट. यू हैव वन मोर टाइप सर, डोंट वरी, वो हो जाएगा उसमें क्लियर. अभी मैंने इसीलिए उसको सिंपल तरीके से बताया. वहां पे ये चीज चाहिए, तुम देखना वहां पे, क्योंकि cos नहीं निकालना होगा, वहां पे tan निकालना होगा. आई विल कम टू दैट पॉइंट. फिलहाल के लिए इतना समझ में आया सबको? यस. Okay now, so everyone copied on this sum and try sum number 15 का 2, 15 का 2 ट्राई करो और 15 का 3 घर पे करना तुम लोग. ओके, एंड देन we'll do number 16.
Yes, anyone has got any doubt? I'll just out for a few minutes. Anyone? Yes. क्या चाहिए? आंसर? अच्छा नंबर 2 का। ठीक है मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं सॉल्व करके देती हूँ। अगर तुम देखो तो इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला इसी सब में है, देखो एक बार ये रहा। इसका सोल्यूशन नंबर 15 का 2 का इसी सब में है। So it is given the value of cos of a by 2, which is 12 by 13. And we have to determine the value of cos A, sin A, tan A. Let's determine cos A first. So we know that cos A is 2 cos square A by 2 minus 1. Alright everyone? The formula of cos 2A is cos square A minus sin square A. It is 2 cos square A minus 1. 1 minus 2 sin square A. 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. तो अगर cos 2a का ये फॉर्मूला है तो फिर cos a का फॉर्मूला क्या होगा? हर जगह a by 2 आ जाएगा। ठीक है? Put the value of cos a by 2, which is 12 by 13. Simplify this. So we have cos a equals to 288 minus 169 by 169. So what is the value of cos a? It is 9, okay, 1, okay, which is 119 by 169. चेक कर लो एक बार। cos a का वैल्यू है ये, और sin a निकल जाएगा और उससे tan a निकल जाएगा। ओके, sin a का दो वैल्यूज, दो साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। ठीक है, sin a का और उससे tan a निकालें। कंप्लीट कर लो, देन विल स्टार्ट। हाँ, so that's why you have to take both, because cos a is positive, तो cos पॉजिटिव किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो या तो फर्स्ट में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है। so that's why you have to use both the sign. Then everyone complete this. अब 16 ऑनवर्ड से तो फॉर्मूला कॉपी एकदम बगल में रखना, क्योंकि 16 ऑनवर्ड से सारा में हम लोग को फॉर्मूला का ही लगेगा फॉर्मूला। हाँ बोलो। यस यस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या होगा? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, एकदम बहुत आस्ते है। आई एम नॉट एबल टू हियर। कॉस स्क्वायर ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। cos square a is 1 minus sin square a. So put the value of cos a, you will get the value of sin a. Sin square a plus cos square a is how much? 1. So put the value of cos a, you will get the value of sin a. ओके, इसको सिंपलीफाई करो, आ जाएगा sin a का वैल्यू, उसके बाद tan a का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम नंबर 16। हाँ बोले बोलो।
प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्मूला है तुम ध्यान से नोट करो, तो यहाँ पे cos a का वैल्यू पॉजिटिव ही है, बिकॉज एक्चुअली देखो अगर मान लो sin a का वैल्यू 3/4 है, cos a का वैल्यू सपोज 1/4 है, एक बार मान लेते हैं, तो tan a का वैल्यू क्या होगा, sin a by cos a which is 3/1। लेकिन अगर मान लो हमको sin a से cos a निकालना होगा, तब तो cos स्क्वायर, तब तो फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। एग्जैक्टली सेम वे इस फॉर्मूला में cos a का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिकॉज cos a का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे cos स्क्वायर a। बट अगर हमको cos a से sin a निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, दो आंसर आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है। इज दिस ओके? हाँ, नहीं तो साइन नेगेटिव लेंगे तो ये साइन से तो आएगा ही नहीं आंसर। मेरा क्वेश्चन एक बात, अच्छा तुम एक बार क्लियरली पहले बोलो, फिर हम क्लियर करते हैं, एक बार बोलो, पूरा बोलो। cos square a by 2 plus sin square a by 2 equals to, हाँ बोलो। अच्छा। आई डिड नॉट हियर एक्चुअली, बीच में एक जगह ना आवाज नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो गया, फिर से बोलो एक बार। ठीक है, एक बार अभी तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, cos a का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, एक बार देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ 16 इज द लास्ट टाइमिंग क्वेश्चन। ओके, 16 के अंदर अलग बात है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन अब 16 ही लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज तुम लोग का रात को 8 बजे टेस्ट है तुम लोग का। जो टेस्ट वो जो लेने वाले थे पिछले वीक में, सैटरडे को या संडे को शायद, वो टेस्ट, क्योंकि वो स्कूल में हम लोग का शेड्यूल ऐसा हो गया था जिसके कारण हम टेस्ट नहीं ले पा रहे थे मीटिंग के कारण। आज रात को 8 बजे। हाँ, ठीक है। ट्यूशन है। ठीक है, तो 9 बजे, 9 बजे रख लेंगे। हाफ एन आवर का टेस्ट है बस। टोटल तुम्हारा छः छः सात क्वेश्चन है शायद। ठीक है, फिर मैं अभी मैसेज कर दूंगा क्लास खत्म होते ही, और मैं बता दूंगा कैसे कैसे करके तुम लोग को अपना आंसर्स को भेजना है। कुछ दिन बाद मैं एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहा हूँ जिस मॉड्यूल में हमेशा टेस्ट लेते रहूंगा मैं। वो एक ऑनलाइन मॉड्यूल होगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा। वहाँ पे आराम से अपना तुम लोग नाम दे करके अपना नेम से एंटर करके और टेस्ट दे सकते हो वैसे करके। अभी फिलहाल ऐसे नॉर्मल तरीके से टेस्ट होगा। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन नंबर 16। हाँ, 16 का हुआ। एक सम मैं बताया तो बाकी फिर तुम लोग एक बार ट्राई करते रहना। अब नया कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सब फॉर्मूला हो चुका जो भी फॉर्मूला था। listen here, you have to show that it is equal to tan x। okay, हम लोग को क्या शो करना है कि it is equal to tan x। so listen here everyone, see you have to try to understand to like, दो तुमको एक चीज को ध्यान से नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन का एंगल 2x है, ठीक है, और यहाँ पे x है। इसका मतलब हम लोग को हाफ एंगल फॉर्मूला चूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? हाफ एंगल फॉर्मूला। नाउ sin 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है?
sin 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin a into cos a और 1 plus cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos square a। कॉपी में चेक करो एक बार और बताओ एक बार कि है या नहीं है। जिसको डाउट है वो बोलो एक बार, कॉपी में चेक करो, ठीक है। बहुत एक लाइन में समझिए। तो sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x into cos x और 1 plus cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos square x। और याद रखना ये जो सम्स है इससे तुम्हारा पूरा ट्रिगो का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर फॉर्मूला लग सकता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी फॉर्मूला सीखा तुम लोग 16 ऑनवर्ड से। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, बचेगा sin x by cos x। What is sin x by cos x? It is tan x. Is this clear? Now everyone 16 का अभी तुम लोग करेगा सम नंबर 3 2 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देन नंबर 6 6 का पहले इतना करो 3 सम करते हैं 2 3 5 स्टार्ट। एंड प्लीज मेक श्योर दैट डोंट ब्लाइंडली सॉल्व, दिमाग लेफ्ट साइड पे मत लगाना, एंगल को कंपेयर करना। एंगल क्या है, हाफ एंगल है तो हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए, ट्राई करो देखो। बता रहा हूँ। अच्छा सबका 6 का 2 हो गया, इसमें देखो आंसर करना है, ठीक है। नहीं हुआ तो एक जन का भी बोल देना मुझे, अदरवाइज आई मूव अहेड। या 6 का 2 डन, 2 के बाद ये 3 और 5 5 यस। अच्छा तब तक 4 भी करते हैं, एवरीवन डू सम नंबर 4 आल्सो। चलो 4 एंड 5 सब करो। नंबर 3 देखना एक बार पहले, मैं 4 बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, पहले एक बार 3 बता दो। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, और हम लोग को शो करना है cos x plus sin x। Okay, so just try to see the, I mean left hand side and right hand side। x यहाँ पर 2x है, इसका मतलब मुझे इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। cos 2a का तो 4 फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे बेटर क्या होगा, cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x। cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर। Is this okay everyone? I am applying the formula of cos 2a and the formula is cos square a minus sin square a। What is the formula of a square minus b square? It is a minus b into a plus b. So we are finding that cos x minus sin x gets cancelled, and what is left? It is cos x plus sin x। तो अभी पता है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोग देखना, पहले था अलग टाइप का, सब अब कुछ नया सीखना नहीं है, जो सीखा हुआ बस उसको अप्लाई करना सारा फॉर्मूला। एवरीवन ट्राई नंबर 4 now। हाँ, 4 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
आप बोलो, सुन रहे हैं। आर यू यूजिंग हेडफोन? तुम्हारा आवाज बहुत धीमा आ रहा है, बहुत धीमा, मतलब सुनने में बहुत। हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो। हाँ वो भी होता है। बट यहाँ पे बट यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को लगाना कौन सा चाहिए, ये वाला लगाना चाहिए। एज पर देखो डिनोमिनेटर को देखो, उसके हिसाब से अगर हम ये लगाएंगे तो सिंप्लीफाई होके cos x plus sin x। तो यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। नाउ एवरीवन ट्राई नंबर 4। हाँ बोलो। अच्छा ये सब हो गया, 16 का 2 3 4 5 सब हो गया। ठीक है, तो एक काम करो तुम। अच्छा मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट 6 का नंबर ए सी डी, पहले ये करती है 6 का ए सी डी, तीन सम का। Now, so just I want everyone to just respond. Have you done number 4, 16 ka number 4? Or shall I do it for you on the board? Is there anyone? हाँ देखना एक बार बोर्ड पे। देखो ऐसे करके रिस्पॉन्ड करो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं हुआ तो ठीक, ट्राई कर रहा है तो बोलो ट्राई। अगर मान लो किसी को डाउट है तो बोलो मैं करा देता हूँ। सी नंबर 1। देखो तुम लोग ना सम को बाय खाली इसका सॉल्यूशन को मत देखो। देखो मैं दिमाग कैसे लगा, सोच कैसे लगा उस चीज को देखो। और प्रोसेस क्या है वो देखो एक बार। Listen here, everyone. See, try to see the everything कैसे एनालाइज कर। साइन का एंगल x, पहले राइट साइड चेक करो। फंक्शन का एंगल क्या है, x बाई टू। यहाँ पे x बाई टू है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन x है। अब इस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको आंसर क्या में चाहिए, हाफ एंगल में आंसर चाहिए। समझ में आया तो बात। अब एक बात बताओ, साइन टू ए का फॉर्मूला अगर टू साइन ए कॉस ए होता है, तो फिर बताना एक बार साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो। if 2a becomes a, yes, देखो sin 2a, sin 2a यहाँ पे एंगल क्या है 2a, तो 2a का हाफ क्या होता है a, a का हाफ क्या हो जाएगा 2 sin a by 2, not a, into cos of a by 2. Please try to understand this and do not cancel this and this, because ये 2 आगे प्रोडक्ट फॉर्म है और यहाँ पे a by 2 में ये 2 क्या है, एंगल वाला पार्ट है, तो ये हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला बोलो या ये फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज है। इट्स 2 sin x by 2 into cos of x by 2। ओके, tan x by 2 को sin x by 2 by cos x by 2 लिखते हैं। क्यों, बिकॉज हम लोग को आंसर पूरा साइन फंक्शन में चाहिए। 2 gets cancel, cos कैंसिल हो गया, sin x by 2 into sin x by 2 is sin square x by 2। So this is what we have on the right hand side. Is this okay? एक सम और बाकी था, that was number 5. Try once.
Now have you done number 5? किसी को डाउट है? 5 के बाद 6 का ए सी डी, 6 का सब पार्ट ए सी डी, 16 का 6 का ए सी डी करना। बोर्ड पे लिखा हो 6 का ए सी और डी। सो लिसन एवरीवन, जिनका ये नहीं हुआ ये वाला देखो, हमको आंसर लाना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अल्फा देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे भी sin x है, इसको सिंपलीफाई करना आसान क्यों है, ऐड करना क्यों आसान, बिकॉज दोनों सेम फंक्शन है। ये भी sin फंक्शन है, ये भी sin फंक्शन है, दोनों का एंगल x है। एक sin x होता है, दूसरा cos x होता है, तो एडिशन नहीं होता, बिकॉज यू नो दैट we can add like terms. Like terms can be added, like terms can be subtracted. So exactly same way, हमको यहाँ पे डालना है आंसर 1 minus tan square alpha। अल्फा तो है लेकिन यहाँ पे cot है, तो हम क्या करेंगे, cot अल्फा न्यूमरेटर में अगर जाएगा तो ये tan अल्फा हो जाएगा। Is this clear? Divided by tan 2 अल्फा। अब यहाँ पे हमने tan में तो ला दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे डिनोमिनेटर में। क्या प्रॉब्लम है, tan 2 अल्फा है और यहाँ पे आंसर tan अल्फा के टर्म्स में। Now what is the formula of tan 2a? The formula of tan 2a is 2 tan a by 1 minus tan square। So देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ये चैप्टर 16 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे बस तुमको करना क्या है, आराम से फॉर्मूला को राइट हैंड साइड को एनालाइज करो, सारा फॉर्मूला बगल में रख लो, याद नहीं करना फॉर्मूला, बगल में रखो, सारा फॉर्मूला को यूज करो, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। 2 tan अल्फा कैंसिल हो गया। और ये एक्सरसाइज ऐसा है, मतलब 16 ऑनवर्ड्स करने से होगी, तो मतलब हाथ पे आप रख के बैठोगे ना, समझ में नहीं आएगा करना क्या है, एक स्टेप भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ 16 6 का नंबर ए बड़े कंप्लीट कर, ठीक है मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो एक बार ट्राई करो, हम बता रहे हैं cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला और cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ट्राई करिएगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, एक बार पहले ए करा लें। आई विल जस्ट अ मिनट एवरीवन, लेट एवरीवन कॉपी डाउन दिस। हाँ पहले ये करते हैं, ये हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है, दोनों मेथड देखना है। तुम देखना यहाँ पे बहुत सारा सब रिपीट भी कर रहा हूँ, किया हूँ मैंने, देखना तुम कॉपी पलट के देखो एक बार। ई एफ जी एच ये सब ऑलरेडी किया हुआ है, एच नंबर, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका रीजन हम बताएंगे तुम लोग। अभी हम 3 मेथड से बताएंगे ये सब, तो जाके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है आरव, शायद ये आरव मुझे एक बार बता रहा था कि ये सम को एक और मेथड से कर सकते हैं, दैट वाज नंबर एफ एंड एच। आई विल एक्सप्लेन यू टुडे। Now I'll just erasing this sum, okay? Now 6 का केवल 8 देखना है सबको। Okay, and we have to show that it is equals to 2. So I want your, everyone, I want your attention here. Listen.
देखो दिमाग में दो चीज आ सकता है मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली दो चीज आ सकता है। वो दो चीज क्या है, लिसन। सबसे पहला चीज दिमाग में ये आएगा कि एलसीएम ले लेते हैं, है कि नहीं? दिमाग में आ ही सकता है ये कि फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेते हैं। कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। ओके, now what is sin A into cos B minus cos A into sin B? I repeat, what is sin A into cos B minus cos A into sin B? It is sin of A minus B. It is sin of A minus B. I hope you are understanding what I am saying here. What is 3 theta minus theta? It is sin 2 theta. यहां तक आ गया। अब एक बार प्रूफ पार्ट देखो। प्रूफ में क्या चाहिए बताओ तो, यहाँ पे 2 चाहिए, चाहिए तो 2। ना इसके बाद हम क्या करेंगे, sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a. So as a result we find that sin theta into cos theta gets cancelled and what we are getting, we are getting 2. और यहां से तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि हमको आंसर में 2 चाहिए, let us multiply numerator and denominator both by 2. Now what is 2 sin theta cos theta? It is sin 2 theta. Sin 2 theta gets cancelled and the answer is 2. ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड देखना है, तुम ऐसा भी सोच सकते हैं कि sin 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, which is 3 sin a minus 4 sin 3a, और यहाँ पे cos 3a का फॉर्मूला which is 4 cos 3a minus 3 cos a। समझ में आया? दोनों ही तुम्हारे पास दिमाग में तुम्हारा आ सकता है, ये मेथड आ सकता है या ये मेथड आ सकता है। तो मैंने क्या किया, sin 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया, सारा जगह थीटा थीटा, देखो cos 3a का फॉर्मूला लगा, सिंपलीफाई करना आसान हो जाएगा कि नहीं? व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर, sin थीटा, बच जाएगा 3 minus 4 sin square theta. What is common here, cos theta. What is left? It is 4 cos square theta minus 3. Sin theta gets cancelled, cos theta gets cancelled. Okay, so we have 3 minus 4 sin square theta minus ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। व्हाट इज 3 plus 3, 6। यहां से -4 कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज sin square theta plus cos square theta, it is 1, तो 1 into 4 क्या हो जाएगा, 4। so what is 6 minus 4, it is 2। so it is all your choice, like तुम देखो दोनों मेथड, और देखो दोनों मेथड इजी है, ये ज्यादा इजी है अलग बात है, बट दोनों ही मेथड इजी है, इसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा आ जाएगा इसमें। so everyone copy down both the ways. After this I'll explain you number C, but try first number C.
Now, I hope everyone is copied both the ways. Everyone, shall I move ahead, or are you all copying? Still, you are copying. Everyone, everyone is copied. Now, question number C देखना एक बार. So I am taking reference value first, which is cos alpha into cos of 60 degree minus alpha into cos of 60 degree plus alpha. देखो जनरली जो तुम्हारे दिमाग में आएगा मैंने उस मेथड से करा, ठीक है. यहाँ पे ये करना, ठीक है, ध्यान देना. सबसे पहला चीज cos of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, which is cos a into cos b plus sin a into sin b. यहाँ पे cos of a plus b का फॉर्मूला लगेगा, which is cos a into cos b minus sin a into sin b. Alright everyone, check once. cos of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई किया, cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई किया. देखो कितना सिंपल रखा मैंने, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा. Keep cos alpha as it is. What is a plus b into a minus b? It is a square minus b square. a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ओके, इसके बाद मुझे 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल दिखा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, यहां पे पुट कर दो. और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, सब्स्टिट्यूट दैट आल्सो. इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 sin स्क्वायर अल्फा. क्लियर है? देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या किया है. देखो अगर तुम, मैंने एक्चुअली राइट साइड को मुझे एक बार थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए तुम लोगों की राइट साइड पे क्या है, अदरवाइज तो ज्यादा क्लियर होगा. cos 3 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, चेक करो तो अपनी कॉपी में. cos 3 अल्फा का फार्मूला क्या होता है? वांट एवरीवन टू आंसर मी. वन ऑफ यू. यस, इट इज 4 cos 3 अल्फा 3 cos अल्फा. तुम अगर ध्यान से नोट करो तो ये मिल गया, मतलब ये आ जाएगा, इतना तक आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा. यहां पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो सारा जगह cos अल्फा है. देखो तो मैं क्या करूंगा, लिसन. पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है ना. यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 4. नेक्स्ट, यहां पे बस एक जगह दिक्कत है. देखो अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो ना, डिनोमिनेटर आ गया, देखो न्यूमरेटर में हर जगह cos अल्फा लिख रहे हैं, cos अल्फा. यहां से एक जगह दिक्कत है, तो sin स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा. So we have cos square alpha minus plus minus 3 into 1 is how much? 3. Minus minus plus 3 cos square alpha. So what is cos square alpha plus 3 cos square alpha? It is 4 cos square alpha. Is this clear everyone? Minus 3. Just multiply this cos alpha with both the terms. You will get 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. Can you just check what is there in the numerator? They go 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. And what is this? It is a formula of cos 3 alpha. एक्चुअली ये चैप्टर के बाद ना तुम लोग का लेवल क्लास 10 का जो लेवल था वो क्रॉस करके तुम लोग लेवल में पहुंचे, ये वाला एक्सरसाइज करने के बाद. समझ में आया? तो बात यहाँ पे तुम्हारा थॉट प्रोसेस,
अप्रोच सम को करने का बहुत तुम दिमाग लगाओगे। देखो जो हाथ पे हाथ दे के बैठेगा ना, जो सोचेगा कि हम तो वीक है, हम करेंगे, आगे कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं होगा। When trying you will understand that इतना अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब इस टाइप का सम्स करने में। एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज व्हिच इज देयर इन योर ओपी मल्होत्रा लास्ट एक्सरसाइज जो है ना डी। तुम ये वाला एक्सरसाइज कर लेगा अच्छे से, मैं बता रहा हूँ पहला बार में कुछ नहीं होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का मैं सेकंड टाइम रिवीजन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सेकंड टाइम रिवीजन ऐसे नहीं कि तुम्हारा बैच का जो टाइमिंग है उसमें मैं करूंगा अलग से, उसमें मैं फटाफट कराऊंगा सर। और मैं मैसेज करने वाला हूँ किसको एकदम पूरा क्लास चाहिए अच्छे से ट्रिको का, उसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास बैच फॉर्म करके मैं अलग से क्लास दूंगा। सो एक बार मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यही चीज, ये सेम चीज तुम बार बार रिपीट करते रहोगे, तब तुम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये मैं एक टाइम के लिए करूंगा, दो टाइम के लिए करूंगा, उसके बाद क्या है कि एक बार क्लास, एक बार रिवीजन, नॉर्मल क्लास फिर रिवीजन। बट ये अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए ऐसे करते रहे बार बार हर चैप्टर में इसी तरह से, तो दिक्कत होगा। मैं स्टार्टिंग में सबको मैं टाइम दे रहा हूँ कि तुम लोग एक बार समझ जाओ, क्योंकि अभी क्या है कि 11 का स्टार्टिंग है। बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि बाद में करने से भी होगा, लेकिन तुम लोग देखना हाफ ईयरली के बाद तुम लोग सबको लाइन पे आ जाएगा। बहुत लोग जो लोग सीरियस नहीं है, बट आई वांट कि उतना टाइम तक वेट ना करके पहले सीरियस हो जाओ। और डाउट है तो मुझे बताओ, मैं क्लासेस दे करके क्लियर कर दूंगा। ओके, सो विद दिस एवरीवन यू कॉपी डाउन दिस एंड ट्राई नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी ट्राई करना है। लगभग ऐसे ही टाइप का है उसमें। ट्रिपल में थोड़ा इतना ज्यादा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास बार बार, इसीलिए मैं मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है ना, एकदम पूरा पूरा एकदम बढ़िया हो जाता है ना, तो फिर आगे हमको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि तुम होमवर्क भी करेगा, हर चीज करेगा। सो आई एम इरेजिंग दिस, शैल आई इरेज? नो वन इज कॉपिंग? ओके, सो हैव यू ऑल डन नंबर डी? यस, डी नंबर हो गया, ठीक है। So just note down here everyone. Let us first of all simplify this by applying cos A plus cos B का formula, which is 2 cos A plus B. I'm writing directly, I think समझ में आ जाएगा। A plus B by 2 into cos of A minus B by 2. बहुत इजी सा नहीं, cos 4 थीटा कैंसिल हो जाएगा। cos of minus थीटा is cos थीटा। ऑलरेडी यहाँ तक कर देगा। हम लोग को आंसर चाहिए sin 3 थीटा by sin थीटा। sin 3 थीटा मतलब 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। इज दिस ओके? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना यहाँ पे cos 2a का जो फॉर्मूला है ना, बहुत सारे फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, मैं यहाँ पे sin वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्यों? यहाँ देखो sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। सो वी हैव 3 minus 4 sin स्क्वायर थीटा। नाउ इसके बाद तो बस एक बार ध्यान से मुझे बताओ, सोच के यहाँ से क्या करना चाहिए इसके बाद, लेट मी सी। ये देखो और ये देखो, बोलो। वेरी गुड,
मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। एक्चुअली देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, यू मस्ट ऑलवेज सॉल्व वन साइड ओनली। एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो ठीक है, अदरवाइज जब तुम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो एक साइड से प्रूव करो। व्हाट इज 3 sin थीटा minus 4 sin 3 theta? Sin 3 theta. So we are getting RHS. Don't never solve both the sides. हाँ बताओ। एक्चुअली नहीं करना चाहिए, अवॉइड दैट मेरे को ठीक मतलब रॉन्ग नहीं कर सकता। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में अगर देखा जाए, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल लेवल एग्जाम में टीचर पे डिपेंड करता है। कोई टीचर काट देता है, कोई टीचर उसको मान लेता है कि सही है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तुम अभी ट्राई करो तो ऐसे ट्राई बोर्ड एग्जाम में। हाँ बोलो। ये ये वाला ये वाला ना, ठीक है। एक बात बताओ, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos, मैंने डायरेक्ट एक्चुअली लिख दिया, मुझे लगा समझ में आ जाएगा। a प्लस b बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b। पता है ना ये फॉर्मूला? चेक करो तुम। cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 is 4 theta, a minus b by 2 which is 2 theta minus 2 theta। क्लियर हुआ? देखो देखो, ठीक है। उसके बाद आज के लिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? और नहीं, ठीक है। तुम लोगों को मैं अभी होमवर्क बता दूंगा कहाँ तक करना है, एक बार कॉपी कर लो।